براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں کراچی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ ایم کیو ایم رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نہ صرف ہمارے یعنی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے، بلکہ یہ پاکستان کی بدنامی ہے۔ جو لاپتہ یا کسی کو گمشدہ بنا دینا، کسی کو لاپتہ بنا دینا جو ہے، یہ اس کی بازیابی جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ اسی بات سے جو ہے وہ عبارت ہے، اور جو ریاست ایسا نہیں کر سکتی وہ ریاست جو ہے وہ اپنے بنیادی فرض سے جو ہے وہ غافل ہے۔ تو وہاں پہ اس دن ان اقدامات کے اوپر اتفاق رائے ہوا، اور ساتھ یہ بھی طے پایا کہ میں اور یا صادق صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ حاضر ہوں گے۔ یہاں پہ نہ صرف ایم کیو ایم کی قیادت سے جو ہے وہ اظہار تعزیت، دکھ اور افسوس کا اظہار کریں گے، بلکہ وہ مسنگ پرسنس جو ابھی بایاب نہیں ہوئے ان کے جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بھی ملیں گے، ان کی بات سنیں گے۔ ان کا دکھ جو ہے وہ بانٹا تو نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسا کرب ہے، یہ ایک ایسا دکھ ہے کہ یہ موت سے بھی زیادہ جو ہے وہ کربناک ہے، اور ایسی فیملیز جن کے پیارے ان سے جدا اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ہر پل جو ہے، ہر پل ان کے لیے جو ہے وہ ایک قیامت۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا اور ان فیملیز کا، کیونکہ انہوں نے اپنے دکھ کا، اپنے کرب کا اظہار تو کیا، لیکن ہمیں مہمان ہوتے ہوئے ہمارا لحاظ رکھا۔ انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا دکھ، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا، اور ہم نے حکومت جو کہ اتحادی حکومت ہے اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے ان فیملیز کو یقین دلایا ہے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کی دنیا میں بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور بہت ساری ایسی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہیں۔ تو میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے ان کے دکھ کا، ان کے کرب کا جو ہے وہ ہمیں احساس ہے، تو انہوں نے ہماری بات سنی ہے، ہمیں آج یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہونے اور ان فیملیز سے ملنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے۔ میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں آپ کی وساست سے ان فیملیز کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس سے پہلے کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے لواحقین جو ہیں انہوں نے 50 دن سے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے اپنی نیت، اپنی کوشش کی اور اپنی کمٹمنٹ کی، ان کو یقین دہانی کروائی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کیا۔ تو یہ ایک پورا ایشو جو ہے یہ پورے یعنی صرف کراچی کا نہیں، پورے ملک میں اس قسم کے مسائل جو ہے وہ ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، ہم پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ تشدد، ٹارچر اور گمشدگی یہ جو ہے، یہ جو احترام آدمیت ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف اے مین ہے، اور ڈگنیٹی آف اے مین جو ہے یہ گرنٹیڈ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں۔ جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن کر رہے ہیں، وہ آئین پاکستان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اوپر ہم پوری طرح سے کلیئر ہیں، ہمیں کوئی اس میں جو ہے وہ ابہام نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بروئے کار لائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے جن کا یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے وہ اپنا اعتماد ہمارے اوپر رکھیں گے، کیونکہ ان کا اعتماد جو ہے وہ ہماری طاقت میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا، اور ہم اس بارے میں
बेहतर पेशरफ जो है वो कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। खालिद साहब बात कर लें, उसके बाद मैं फिर आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम शुक्रगुज़ार हैं दोनों मोअज़्ज़ज़ वफाकी वज़रा के और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कि जिन्होंने हमारी इस दरख्वास्त पर, इस अपील पर कि आएँ और अपने आँखों से उस दुख को, उस दर्द की आगाही हासिल करें जिसमें हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम एक ऐसी बदनसीब रियासत में रहते हैं जिसमें कि लोगों को लापता करना जुर्म नहीं बनना अब साबित होता। हम अभी भी कह रहे हैं जिन्होंने लापता किया है हम उनको सज़ा दिलवाना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारे प्यारे अपने घरों तक वापस हो। उसमें कोई भी कानून साजी करनी है हम तैयार हैं आपके साथ, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान में इस सिलसिले को बंद किया जाए इससे पहले कि खुदा का इंसाफ खुद उतर के आए। ऐसा किसी भी महज़्ज़ब माशरे में और इस्लामी माशरे में इसकी गुंजाइश नहीं है जिसको हमने रिवाज दे रखा है। पूरे पाकिस्तान के तमाम ही ख़ित्तों से ये हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी 1997-98 में भी हमारे 27 बेगुनाह नौजवान, बेगुनाह इसलिए कहूँगा कि आप क्योंकि उन पे जुर्म साबित नहीं करते तो मार दिए जाते हैं, लापता कर दिए जाते हैं, वरना आप कोर्ट ऑफ लॉ में लाएँ उनको। तो आपने लापता किए थे और फिर हमें कान में बता दिया गया कि ये अब दुनिया में नहीं है। हम इस गम से अपनी इन माँओं को जिनसे कि आपने आज मुलाकात की है उसका शिकार नहीं करना चाहते, अपील करना चाहते हैं। और हमारे रवैये से, तरीक़े से सबको इससे अंदाज़ा हुआ है कि हमने कोई दहशतगर्दी नहीं कही है। हमारे एहतजाज को दहशतगर्दी, हमारे एतराज़ को गद्दारी कहने का सिलसिला भी बंद किया जाए और सज़ा उतनी ही दी जाए जितना कि हम सज़ावार हैं, जितना हमने जुर्म किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आज आना, ये गुज़श्ता कई साल से जो हम कोशिशें कर रहे हैं उस तरह बेसूर साबित ना हो। आपने आज ये दर्द आप साथ लेके जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दर्द शजर बनेगा इंशाअल्लाह, तो इसके साए में वो लोगों को भी पनाह मिलेगी। अच्छा राणा साहब, सवाल ये है कि ये आज जो है कहीं आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नाराज़गियाँ ख़त्म करने जो आप यहाँ पे आज पहुँचे हैं, कोई फेस सेविंग तो देने नहीं आए, क्योंकि जो MQM है आप उसका माजी जिस हुकूमती जमात के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया उसमें ये पॉइंट हमेशा शामिल रहा है और अभी भी 98 कारकुनान इनके गुम हैं और कारकुनान वापस नहीं मिलते, उनकी लाशें मिलती हैं। तो ये रियासत क्या कर रही है, इस हवाले से आप रोकथाम कैसे करेंगे? दूसरा एक सवाल इसके साथ है कि तालिबान के साथ भी आपके मुज़ाकरात जो है अब वो जारी थे, अब सवात में इतलात है कि दोबारा तालिबान आ रहे हैं, तो आपकी वज़ारत क्या करेगी? जी, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई फेस सेविंग वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा दुख है, ये एक ऐसा कर्ब है कि जो MQM के भी है और बाकी सब का भी है। बतौर एक कौम के जो है ये बात हमारे लिए न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी है कि यहाँ पे लोग जो है वो लापता हों और लोग जो हैं वो उनको प्रोसिक्यूट करने की बजाय उन्हें गुमशुदा जो है वो बना दिया जाए और उसके बाद जो है वो उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनके जो है वो प्यारों को जो है वो मिले। तो ये बात जो है ये मैं समझता हूँ कि ये किसी की फेस सेविंग, ये पूरी कौम का जो है, ये पूरी कौम का जो है वो मसला है। तो इसलिए हम पूरे खुलूस नीयत से जो है वो ये कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ कि आपको भी जो है वो इसमें हमारा साथ देना चाहिए और इस मामले में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक मौसर और मुस्बत जो है वो पेशरफ्त होगी। जहाँ तक आपने बात की है कि सवात में दोबारा से जो है वो दहशतगर्द आ रहे हैं, जी इसमें जी जहाँ तक आपने ये बात की है कि सवात में कोई दोबारा दहशतगर्द आना शुरू हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अफवाह है या अफवाहें जो है वो बनाई जा रही हैं। हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और आप
रोज़ इस किस्म की ख़बरें आप तक पहुंचती हैं कि किस तरह से हमारे जो अदारे हैं वो इस बारे में ऑपरेशन भी कर रहे हैं और वो दहशतगर्द जो इस मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं उनको जो है वो जहन्नम वासल भी कर रहे हैं। तो इसमें कोई जो है वो ऐसी जो है वो बात नहीं है कि हम इस किस्म की एप्रीहेंशंस को जो है वो जगह दें कि जी फ़लाँ जगह पे आ रहे हैं, फ़लाँ जगह पे आ रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान का दिफा करने के ऊपर पूरी तरह से जो है वो कामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा किया जाएगा बल्कि उसकी सरहदों की और इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको पूरी तरह से जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। मुजाहिद बरेलवी एक सवाल करना चाहता है। जी जी। एक तो ये कि आप MKM के मेहमान हैं जी, इसलिए हमें इल्म है कि अपने जो हमारे मेहमान आते हैं मैं भी उस तरह मेज़बानी में ऐसा सवाल ना करूं कि जिसमें तलखी तुर्फी आए, मोहब्बत से और दुख से। और आप खुद भी, मुझे इल्म है कि ज़िया-उल-हक के दौर में जब अगवा हुए थे, जब निकले गए थे तो आपके घर पे क्या हुई। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी हैं मीर साहब जो 2013 और 16 के बताए जाते हैं, यानी जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो उस दौर में भी लोगों को अगवा किया गया, ये पीपल्स पार्टी दौर में भी हुआ। तो इसलिए तशवीश की बात है कि आप एक माशाल्लाह जब हुकूमत होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, आपको इदारों एजेंसियों का इल्म है और करीब से इल्म है राना साहब, इसलिए हम आपसे ज़्यादा तवक्को ये लोग कर रहे हैं कि आप उन लोगों को जो 102 फरिश्ते लापता गुमशुदा उनको ज़रूर बाजियाब कराएंगे। इवन वो लोग कहते हैं कि जब अगर वो चले गए इस दुनिया से हमें बता दें कि वो कहाँ दफन है। देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो आपने बात की है उसका आपको भी इल्म है और हमें भी इल्म है। हुकूमतों की इस बारे में रिट किस हद तक रही है, किस हद तक है और उसकी जो है वो दीगर उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि जिससे हमारी ये कोशिश जो है ये जो है वो हम अपने मकसद से दूर हों। मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए या रेड अलर्ट जो है वो हासिल करने के लिए कोई ऐसी बात करूं कि जिससे हम अपने मकसद से दूर हों और एक जो है वो वक्ती तौर पे जो है ना वो बड़ी बात हो जाएगी कि ये बात हो गई, ये बात हो गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मामले का जहां पे हल है, जिस तरह से ये हल हो सकता है, हम बिल्कुल टू दी पॉइंट उसी पे फोकस हैं और उसी अंदाज से जो है वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अफ़हाम व तफ़हीम से बढ़ा रहे हैं। हम तसादम के रास्ते की बजाय अफ़हाम व तफ़हीम से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ MQM की क़यादत का भी और उन जमातों का भी जो बलूचिस्तान के इसी किस्म के मसले से जो है वो मुंसलिक हैं कि वो इस बारे में हुकूमत से तावन कर रही हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस मसले को, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल अनकरीब मुस्तकबिल में हम इसको हल कर देंगे। PTI ने कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जल्द ही जो इमरान खान के पैरों में पड़ने वाले हैं, ऐसा क्या सूरत-ए-हाल होने वाली है कि आप उनके पैरों में पड़ने जाएंगे? इसमें एक सवाल और ऐड कर लिएगा, मिस्टर X और मिस्टर Y का उन्होंने जिक्र किया है। आप दोबारा गिरदान शुरू हुई तो है, ये X और Y है कौन? ये Z तक कहानी क्यों नहीं जा रही है? देखिए, मामला ये है कि ये मिस्टर X और मिस्टर Y जो है ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये XY करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। और बाकी रही बात उनके पाँव पड़ने की, तो हो सकता है कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया जाए। राना साहब ये फरमाइएगा कि मुल्क में और कराची और बलूचिस्तान में कुछ अलग इंसाफ और कानून है। यहाँ पे लाशें मिलती हैं या लापता कर दिया जाता है, लेकिन इमरान खान और उनके लोग जो है वो इदारों की तब्दील करते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है। और दूसरा ये कि फजलुर रहमान ने ये कहा है कि आप हकीम राना सनाउल्लाह हैं, आपके पास इनकी क्या हिकमत है? उनके वो अक्टूबर में इस्लामाबाद भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए जो है वो माजून तैयार है, जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो दिया जाएगा। देखें, मामला ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है, भले वो कोई भी हो,
किसी के ख़िलाफ़ भी हम इस किस्म का एक्शन नहीं चाहते। अगर किसी का कोई जुर्म है, कोई वो अदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है या कोई वो और किस्म का कोई जो है वो क्राइम कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो अपीयर करना चाहिए। ये गुमशुदगी या लापता करने की बात जो बलूचिस्तान के लोग और ख़ास तौर पे कराची के लोग फेस कर रहे हैं, हम बुनियादी तौर पे इसके खिलाफ हैं। जी लास्ट क्वेश्चन, जी लास्ट क्वेश्चन आप कर लें। जी मैं कर रहा हूँ। जी इमरान खान साहब ने अक्टूबर में दोबारा तहरीक चलाने और इस्लामाबाद आने का ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि हमें कैसे रोका जाता है, क्या कहेंगे? अब जब वो आएगा ना, उसे ऐसी धूनी देंगे कि वो वहाँ से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुँह नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। कत्ल किया गया है, उसके हवाले से 10 दिन गुजर गए, लापता अफराद से भी काम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह MKM रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि लापता कारकुनान के मामले पर MKM की क़यादत से मिलने का फ़ैसला किया है। आज उनसे इजहार अफसोस किया।